Visible to everyone. What is anode, what is cathode, and all this, you know. Surya is going ahead, you know, fast. Question: What is a galvanic voltaic cell? Option 1, it is a type of battery that drives a redox reaction when electricity is applied. Option 2, it is a type of battery that generates an electrical current from. Question: What is a reducing agent? Option 1, it is the species that creates electrons. Option 2, it is the species that destroys electrons. Option 3, it is the species that gets oxidized, loses electrons. Option 4, it is the species that gets reduced, gains electrons. Question: What is oxidation? Option 1, it is the gain of electrons. Option 2, it is the destruction of electrons. Option 3, it is the loss of electrons. Option 4, it is the creation of electrons. Question: What is an oxidizing agent? Option 1, it is the species that gets oxidized, loses electrons. Option 2, it is the species that loses electrons. Option 3, it is the species that creates electrons. Option 4, it is the species that gets reduced, gains electrons. Question: What is a redox reaction? Option 1, a reaction where both reactants get oxidized. Option 2, a reaction that involves the combustion of at least one reactant. Option 3, a reaction that involves the transfer of electrons between reactants. Question: What is reduction? Option 1, it is the creation of electrons. Option 2, it is the destruction. So my quiz is done. Wow, very good, fantastic. Question: What is a cathode? Option 1, it is the salt bridge that connects half cells. Question: What is a standard half cell? Option 1, it is a cell that generates half of a volt of electricity. Option 2, it is a cell containing only an aqueous ion solution and no metal bar. Option 3, it is one cell that comprises half of a whole battery. Question: What is the half reaction? Option 1, it shows either the reduction component or the oxidation component of the reaction. Okay, well done. Wow, मजा आ गया। मैंने पावर बूस्टर यूज किया तो सिया ने भी यूज किया है। आई डोंट थिंक अजय प्रताप यूज किया पावर बूस्टर तुम? सर मेरा एक गलती से गलत हो गया था, मेरा भी हाथ लग गया। उसमें ना सारे ना एक जैसे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा ना मिस होता है। आई विल मेक ये जो भी मैं क्वेश्चन आगे बनाऊंगा, आई विल मेक दैट विल बी बेस्ड अपॉन योर यू नो क्लास, जो बेसिकली प्रीवियस ईयर जेईई वाले क्वेश्चन है या इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो ये इंटरेस्टिंग होगा। दैट विल टेक यू नो हार्डली नॉट मोर देन 10 मिनट्स फॉर 10 क्वेश्चन। एक्चुअली में हमें जेईई में जैसे हम लोग आधे घंटे मतलब मिनिमम 3 मिनट्स लगते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने में, यहाँ हमने टाइम दिया 30 सेकेंड्स, मे बी यू नो 1 मिनट मैक्सिमम। 1 मिनट में हमें क्वेश्चन करना है
We are going to do not more than 10 questions per day. The 10 क्वेश्चन हम पर डे करेंगे तो the art is going to refresh at least, वो हमें दिमाग को रिफ्रेश करेगा, जो हमने पीछे पढ़ी हुई चीज़ें वो हमारे कितने तैयार हैं, एंड नॉट ओनली दैट वो हमारे रिफ्रेशमेंट भी और हमारे लिए आगे कॉन्सेप्ट को भी बूस्टअप करेगा। अजीत अभी तो मुझे लग रहा है बहुत सारे प्लेयर आगे चल रहे हैं, आप दोबारा से भी इसको खेल सकते हो। टिल देन आई एम नॉट गोइंग टू इन दिस, हु वन ऑब्वियसली अजय प्रताप मेरे से आगे निकल गया, क्या बात है भाई, वेरी नाइस यार, कितना पावर सर बूस्टर। मेरा तो एक गलत हो गया था, गलती से गलत ऑप्शन टच कर दिया। अजय प्रताप तो 10 पावर बूस्टर तो तुमने भी लगाया था यार, 10 मैंने लगाया, बट योर स्पीड इज आई होप लिटिल मोर, बट श्रिया ने पावर बूस्टर कम लगाया है, एक उसका लॉस हो गया ना, उसमें गया। भव्या, भव्या तुम्हारे पावर बूस्टर कहाँ गए, 4 ही यूज की, ये बड़ा सोच सोच के कभी कहीं गलत ना हो जाए ना। भव्या का है ना, इसे यूज टू थिंक अबाउट द मोर एक्यूरेसी। ब्लूबेरी के नाम से कौन है, अननोन पर्सन है, चलो। सो द लैडर बोर्ड तो मैंने देख लिया, आई विल टेक अ सिप। जी होती तो मैं जीत जाता। एक्चुअली प्रैक्टिस पे है, मैं भी खोला था कई बार, मेरा देखो ना पीछे गया। ये जो एक्चुअली ध्यान देता है ना स्क्रीन पे, पावर बूस्टर लगाएगा ना वही आगे जाएगा। इट्स नॉट ओनली द डिपेंड अपॉन नॉलेज, डिपेंड अपॉन द पावर बूस्टर आप लगा पा रहे हो कि नहीं। पावर बूस्टर इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पावर बूस्टर नहीं लगाओगे ना तो व्हाट विल हैपन कि आप लगाते सारे सही भी करोगे, तभी आपके ना पीछे जाएंगे। आज हम लोग कोड रिपीट करना, कोड शेयर कर दो श्रिया, याद है? नो सर। बोल दो तेज बोलो ना, कोई बोल रहा था। सर 591 हाँ जी हाँ जी, 3904। 5913904। चलो ये लोग खेल लेगा, खेलने से मैंने रिफ्रेशमेंट होगा, रिडॉक्स का एक्चुअली है, क्योंकि इस चैप्टर में रिडॉक्स हम लोग बहुत यूज करते हैं। वी हैव टू यूज दैट, उसको हमें करते रहना चाहिए। रेस्ट लॉ, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, पीछे हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो कोई भी सेल होता है, सेल में बेसिकली 2 टर्मिनल होते थे। हम लोगों ने पढ़ा था लेफ्ट हैंड साइड होता है, इधर राइट हैंड साइड था। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था बेटा, एनोड, राइट हैंड साइड क्या था, दैट वाज द कैथोड। ये तो कन्वेंशन है जो हमेशा हमें याद रहना चाहिए। एनोड पे क्या होता था बेटा, ऑलवेज ऑक्सीडेशन, कैथोड ऑलवेज रिडक्शन, एंड ऑक्सीडेशन, आफ्टर द ऑक्सीडेशन उस पे एनोड पे टर्मिनल पे चार्ज क्या आता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, नेगेटिव, दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव एंड दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, आई होप, है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव हो जाता है। दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कन्वेंशन हम लोग लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बीच में एक पैरेलल लाइन लगा देते हैं जो हमें इस बात को शो करेगा, दैट इज द सॉल्ट ब्रिज। तो हमारे लिए बेसिकली क्या करेगा, दैट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का काम करेगी। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। जब हम इसको वायर से जोड़ते हैं ना इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन थ्रू द वायर ऐसे मूव करेगा, एंड पॉजिटिव टर्मिनल हैज प्रॉपर्टी टू पुल द इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव अपनी तरफ पुल करता है। नेगेटिव का होता है पुश करना, नेगेटिव इज गोइंग टू पुश। तो नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर जाता है, इधर ही आपको पुल बैक करेगा। ये तो पूरे चैप्टर में बार बार आता रहेगा, इसी कन्वेंशन पे ध्यान देना रहता है। दूसरा, न्यूमेरिकली अगर आपको अप टू डेट होना तो इन दोनों पे पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ आई केम टू नो दैट एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा। तो मैंने इसमें समझाया था कि आपको अगर 2 डाटा गिवन है, मैं अगर तुम्हें 2 डाटा गिवन है, लेट ई नॉट ऑफ, ई नॉट का मतलब ई द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सेल पोटेंशियल के भी काम आता है, हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। ई नॉट ऑफ कॉपर +2 बाई कॉपर अगर मैं दे दूँ, सपोज करें वैल्यू है 0.34 वोल्ट, एंड अनदर ई नॉट इज गिवन सपोज बाई सीइंग द डेटा। किसी से पूछना नहीं है, न्यूमेरिकल आएगा और उस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल आपसे तुरंत बन जाएंगे अगर आपको इस डाटा पे खाली करना है। इतना खाली याद हो,
कि ये कौन सी वैल्यू लो है, Focal कौन सी वैल्यू लो है बेटा, कौन सी हाई है? ये लो है, low value is anode and higher is cathode. वेरी गुड। लोअर वैल्यू ऑलवेज एक्ट एज एनोड, उसमें हमें कुछ सोचना भी नहीं रहता, एंड हायर वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बिहेव एज कैथोड, कैथोड की तरीके से बिहेव करें। दिस वी हैव टू, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये डाटा अगर हमें गिवन रहेगा, इसको कोई रटने वाला काम है नहीं। अगर हमें याद है बेटा तो हम क्या कर सकते हैं, इनॉट ऑफ सेल निकाल लेते थे। ये हर न्यूमेरिकल में काम आएगा, इनॉट ऑफ सेल आपको निकालना ही रहेगा। इनॉट ऑफ सेल निकालते समय कहता है इनॉट ऑफ कैथोड माइनस इनॉट ऑफ एनोड, इनॉट ऑफ कैथोड माइनस इनॉट ऑफ एनोड। अब कैथोड एनोड किसी से पूछना नहीं है, ये तो डाटा देख के बता देते हैं। इनॉट ऑफ कैथोड माइनस इनॉट ऑफ एनोड, बाय सीइंग द डेटा आई कैन नो कि ये बेटा एनोड है, ये कैथोड है। तो जो कैथोड का डाटा गिवन है उसको पहले रखना है हमें। कैथोड का गिवन है 0.80 माइनस फार्मूले का हो गया, और ये वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में लिख देंगे 0.34। सी द साइन कन्वेंशन आल्सो, ये नियरली कितना आ जाएगा, 50 माइनस 30 50, 50 से थोड़ा कम 46, 0.46 अप्रॉक्स है ना वोल्ट, ये हमने निकाल लिया। ये आना चाहिए, इतना अगर आपको आता रहेगा तो हम आगे थोड़ा बढ़ पाएंगे। और किसी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल हमें कैसे लिखना रहता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना रहता है, और आगे एक टॉपिक है इस पे बेस्ड, दैट इज नोन एज नॉस्ट इक्वेशन, वो हमें यहाँ पे काम करना होगा। तो उसके जाने के पहले मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे दूँ। समटाइम देयर इज अ डाउट ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर आता है। What is the difference between EMF versus potential difference? Potential difference. EMF और potential difference में क्या difference है? ये कभी कभी दिमाग में आता है, दोनों तो एक जैसा ही लगता है, दोनों के सिंबल भी एक्चुअली एक जैसे हैं, दोनों के सिंबल भी ना हम एक जैसे यूज करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस किस बात का है? EMF और आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको क्या बोलना है कि तुम्हारे पास अगर कोई सेल है, मान लो तुम्हारे पास अगर एक ड्राई सेल ले लो, तो ड्राई सेल भी नो दैट कि ड्राई सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं बेटा। आप उसमें ध्यान से देखना, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल मेंटेन रहता है यहाँ पे, जहाँ पे कॉपर की कैप लगी रहती है, ब्रास मेटल की कैप रहती है, एक साइड में जिंक का ये बेसिकली ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये कैल्वी, ये हमारी मान लो ड्राई सेल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है, मैंने हमेशा समझाया कि ये मेरा एनोड होता है, ये मेरा कैथोड होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही रहता है, इसको ऐसे फैक्ट जैसा भी मान लो, जिसका नहीं क्लियर है। अब अगर मैंने इन टर्मिनल्स को कनेक्ट नहीं किया तो करंट तो मिलेगी नहीं। लेकिन बेटा मार्केट से बैटरी लेके आते हैं ना, वहाँ ये मेंशन रहता है कि ये ना 1.5 वोल्ट की बैटरी है, ये 1.50 वोल्ट की बैटरी है। तो ये इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, ये यहाँ पहले से मेंशन है। ये जो डिफरेंस निकालता है ना, वो पोटेंशियोमीटर के हेल्प से निकालता है। मैंने अभी इसकी सर्किट को इनकम्प्लीट नहीं किया, ऐसा मैंने कोई तार नहीं लगाया, मैंने कोई वोल्टामीटर है मीटर नहीं लगाया, मैंने यहाँ कोई मतलब सेल को यूज भी नहीं किया, लेकिन सेल पे एक प्रिंटेड डेटा है। ये डेटा इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि कांस्टेंट करंट इसमें जो फ्लो होगी, अगर आपने इसका यूज किया तो आपको ये 1.5 वोल्ट देगा। तो EMF इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या जिसको आप बोलते हो कहीं ना कहीं नॉट ऑफ सेल जो बोलते हो, ई नॉट ऑफ सेल जो आपका है, बेसिकली वो क्या डिसाइड करता है बेटा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट। ये कांस्टेंट फ्लो जो होता है, बैटरी आपकी फुल्ली चार्ज हो, बैटरी आपकी कम चार्ज हो, जब तक ये बैटरी यूज में रहेगी आपको 1.5 वोल्ट की करंट मिलती रहेगी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस, ये है। लेकिन बेसिकली ये कब होता है बेटा, जब सर्किट इनकम्प्लीट रहती है। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस between two electrodes, between electrodes, is it, between electrodes one cell is not in use। जब आप इस बैटरी को आप यूज नहीं करते, between electrode when circuit is incomplete। सर्किट इनकम्प्लीट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, सर्किट आपने आनी नहीं की, सर्किट इज इनकम्प्लीट मतलब आपका करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तब की बात ही बता रहा है। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। इधर के लिए अगर बात करते हो तो व्हाट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस, कहता है सर इसको मेजरमेंट करना होगा तो मेरे को एक वायर लेना होगा, एक वायर हमें यहाँ से लगाना पड़ेगा, बीच में हम क्या लगाएंगे, वोल्टामीटर लगा देंगे। वोल्टामीटर
लगा दो वोल्टामीटर, अब आपको डिफ्लेक्शन बताएगा कितना वोल्ट यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये हो सकता है तुम्हें 1.10 वोल्ट का तुम्हें रीडिंग दे रहा हो। ये आपको तब मिल रहा है जब ये इसको यूज कर रहे हो, व्हाट इट, ये इसको जब हम यूज करते हैं तो ये जो हमें आगे जो मिलने वाला है, मैंने बोला कि ये 1.5 का है ना, 1.5 का है, उससे कम भी मिल सकता है, कभी कभी उससे कम भी आता है, इट्स नॉट ऑलवेज सेम यू नो। क्यों कम आ गया? एनीवन कैन मेक एनी कमेंट? कहता बेटा ये जो वायर मैंने यूज किया ना, इसका रेजिस्टेंस भी तो ऑफर होगा। बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। वेरी गुड, हाँ ये मान लो 1.1 या 1.4 1.35 कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ी सी कम है, हमेशा ना कभी कभी वैल्यू कम आती है। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पीडी होगा। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, between electrode, oppositely charged electrodes when circuit is completed. Electrode 1 circuit is completed. When the cell is under use, ऐसे मान लो, when the circuit is completed or cell is under use, circuit is complete. फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम ऐसे बोलते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं when my cell is under the use, सेल को मैं यूज कर रहा हूँ, यूज करते समय इसकी सिचुएशन जो भी है वोल्टामीटर, इसका मेजरमेंट लिख देना, इट इज मेजर्ड बाय वोल्टामीटर। ये बेसिकली हमें ये वोल्टामीटर एक डिवाइस होती है जिससे हम निकाल सकते हैं, यूज विद मेजर्ड विद हेल्प ऑफ वोल्टामीटर की हेल्प से इसको निकालते हैं। वोल्टमीटर हो गया, ठीक, वोल्टामीटर मैंने बोला वोल्टमीटर, इसकी मेजरमेंट ना पोटेंशियोमीटर की हेल्प से निकालते हैं। पोटेंशियोमीटर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है ना, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से निकालते हैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स का मेजरमेंट। नेक्स्ट, ये इससे हमें ना मैक्सिमम वर्क डन मिलता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू, लिख देना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसकी जिम्मेदारी होती है कि जितने वोल्ट की बैटरी है कम से कम उतना तो आउटपुट मिलना चाहिए। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल ये उस डिवाइस से हमेशा उतने ही वोल्ट निकालता है, responsible for, है ना, constant वोल्टेज, जो आपका वोल्टेज वहां प्रिंटेड है ना उतना तो ये निकालेगा। आगे तुम्हारा रेजिस्टेंस में लॉस हो जाए उसका कोई मतलब नहीं, गॉट इट। ये इससे में ना मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। क्या मिलता है बेटा? मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करता है, मैक्सिमम वर्क डन हमें हमेशा मिलता है। यहाँ से क्या मिलेगा? इट इज ऑल्सो, इट गिव्स मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन मिलता है यहाँ से। इसी सेल से मैक्सिमम कितना वर्क डन होगा वो इसी पे डिपेंडेंट रहता है, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, कितना वोल्टेज का होगा, ये यहाँ जिम्मेदार है। इसमें तो फिक्स है नहीं, इट इज ऑलवेज लेस देन लिख देना, ज्यादातर हमेशा कम ही आएगा क्योंकि वायर तो हमें यूज करना ही पड़ेगा। It is always less than, जो प्रिंटेड होगा उससे तो कम ही आएगा ना, लेस देन मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी लेस देन मैक्सिमम। मैक्सिमम जो आउटपुट है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम जो आउटपुट है जो वोल्टेज का, उससे हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लिख देना। सेल की जो वोल्टेज उससे कम रहती है बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी पॉसिबिलिटी है जो बाहर आ रहा है, ठीक है ना। इससे आपको मैक्सिमम वर्क नहीं होगा। इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेडी करेंट, इसमें लिख देना, इसकी जिम्मेदारी नहीं है इस काम के लिए। इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। पेन बहुत ही, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो गया इस पेन को, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेडी करंट, स्टेडी करंट वहाँ बनेगी नहीं बनेगी, इसको कोई लेना देना नहीं। स्टेडी करंट, यहाँ तो आपको मैक्सिमम वर्क नहीं मिलेगा, इसका मैक्सिमम वर्क डन से काम, इसकी जिम्मेदारी मैक्सिमम वर्क डन के भी नहीं है। इट्स क्लियर, ईएमएफ हो गया हमें, और ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों सिमिलर टू ईच अदर हो सकते हैं, दोनों एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये हम आगे बताएंगे दोनों सेम कब हो सकते हैं। वन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वी आर गोइंग टू टेक यूनिटी। अगर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का ले ले बेटा, यूनिटी ले लेंगे तब ये दोनों सेम हो जाता है, 1 मोल पर लीटर। तो मैथमेटिकली वैल्यू हमारी सेम होती है।
यहाँ तक नोट कर लिया? यस सर। यस सर। चलो अब इसमें मैंने बोला कि थोड़ा सा आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है, दे दीजिए इक्वेशन दैट इज नोन एज दैट इज गिवन बाय नर्स्ट। नर्स्ट इज अ साइंटिस्ट। इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट हैज गिवन अ रिलेशनशिप, इन्होंने एक रिलेशन दिया कि आप दोनों में एक रिलेशन बनाया जा सकता है। नर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करें तो नर्स्ट हैज गिवन अ रिलेशनशिप बिटवीन EMF as well as the arc potential difference जो आप देखते हो। He has given a relationship that E of cell is equal to E naught of cell, E naught of cell, E naught of हमेशा कांस्टेंट रहता है, E naught कैन नॉट बी वेरी बिकॉज ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला जाता है। E naught of cell माइनस 2 पॉइंट, बड़ा सा फार्मूला है देखने में, टेंशन मत लेना, ये छोटा हो जाएगा अभी, 2.303 RT बाई N फैराडे लॉग, यहाँ पे लिखते हैं QC। अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो वहाँ पे हम पढ़ाते थे कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट, QC को बोलते हैं रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट, इज इट कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट QUETINT, इज इट, याद आ गया होगा कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये अभी हम आगे सिखाएंगे वैसे, इज इट, याद आ गया किसी को? मान लो आपने बेटा एक रिएक्शन कराया, A मोल ऑफ A रिएक्ट किया, मान लो मैं रिएक्शन किससे करा रहा हूँ, B मोल ऑफ B के साथ, हो सकता है मुझे क्या दे दे बेटा, C मोल ऑफ C, इज इट, C मोल ऑफ C दे देगा, और क्या दे देगा बेटा, D मोल ऑफ B दे देगा। तो ये कहते हैं कि आपने अभी रिएक्शन कराया, इक्विलिब्रियम स्टेबल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम में अगर आप रेशियो निकालते हो, बिगिनिंग में निकाल लो, मिडिल में निकालो टाइम में बेटा, या लास्ट में, रिएक्शन इज अबाउट टू स्टार्ट तब निकालो, रिएक्शन मिडिल में आ गया तब निकालो, ये कभी भी निकाला जा सकता है, लेकिन इसका फार्मूला केसी से मैच करता है। ऑब्वियसली ये भी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट ही होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को न्यूमरेटर यहाँ रख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नीचे रख देंगे इसके साथ। ये कब निकालते हैं बेटा, एट एनी टाइम, ये इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे हम लोग, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी टाइम मतलब इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल, established or not, no problem। ये इसका मैग्नीट्यूड हमें बताता था कि मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड में जाएगा कि बैकवर्ड में जाएगा, ये हमें ये डायरेक्शन देता था। इसकी कंडीशन अगर आपने थोड़ा सा इक्विलिब्रियम में पढ़ी होगी तो वहाँ हमसे ये बोलता था कि अगर QC बेटा QC इज इक्वल टू KC हो जाएगा तो बोलता था कि दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो मेरी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो जाती थी, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। गॉट इट? If QC is equal to KC, then it is going to be equilibrium. But if QC can be less than KC, can be more than KC. QC can be greater than KC, QC can be less than KC। ये हमें उस चैप्टर में कॉन्सेप्ट था, इसका इस चैप्टर में इसलिए इन्वॉल्वमेंट है। यही रीजन है कि चैप्टर हर मामले में दूसरे चैप्टर से डोमिनेट करता है, क्योंकि 11th का भी कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर लिया, QC का भी आ गया, तो QC लेस मोर देन KC होने पे क्या होता था, कोई बता सकता है? डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता था बेटा? QC ज्यादा है, QC ज्यादा होने का मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है। QC ज्यादा है बेटा तो यानी प्रोडक्ट इज मोर देन द रिएक्टेंट, तो रिएक्शन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हमारा ना बैकवर्ड करेगा। हाँ, ये डायरेक्शन है कि अब आपका रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करने वाला है। वही हमारे पास अगर ये कंटेनर है, ऐसे कंटेनर रहता था, बीच में हम यहाँ पे एक मान लो मैंने सेपरेशन लगा दिया, यहाँ पे ये बेटा मेरे पास रिएक्टेंट, इतने मान लो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आप ज्यादा भर दो, किसी एक सिचुएशन पे मान लो प्रोडक्ट ज्यादा बन गया, बनता गया रिएक्टेंट कंज्यूम होता गया, तो बेटा ऐसी सिचुएशन पे, क्योंकि ये रिएक्शन हमारे कैसे हैं, रिवर्सिबल है, रिएक्शन अगर रिवर्सिबल होता है तो ये प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट की तरफ भी जा सकता था, रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट की तरफ भी जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लाके इधर डाल दो, अलग से इधर पानी लाके डालो, तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। कहता है इन दैट केस प्रोडक्ट कैन डिकम्पोज टू गिव बैक टू द रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे बेटा तो रिएक्टेंट हमारा इधर से उधर जाएगा। तो किस पॉइंट पे क्या ज्यादा है, ये QC की क्वांटिटी बताती है। QC बिगिनिंग में क्या होता है, रिएक्टेंट ज्यादा होता है,
भाई बिगिनिंग में ये वाली कंडीशन होती है, क्यूसी केसी से कम होता है। क्यूसी केसी से कम तब होगा, इस रेशियो पे ध्यान देना, पी बाई आर का। पी बाई आर एक फैक्टर है, मैं बोलता हूँ पी बाई आर के रेशियो को हम क्यूसी लिखते हैं, और क्यूसी इज लेस, क्यूसी कम आ रहा है। क्यूसी कम कब आएगा? जब रिएक्टेंट ज्यादा हो, कम। बट beginning of the reaction में reactant is going to be more in quantity rather than the product. reactant ज्यादा होता है तो इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। ये कंडीशन हम लोगों को वहां पे उस चैप्टर में काम की बड़ी इंपॉर्टेंट रहती थी। क्यूसी की कंडीशन देता था और क्यूसी से हमें डायरेक्शन पूछता था कि किधर जाना है। तो ये बेटा कौन सी डायरेक्शन रहती थी? बब्बे याद आया? फॉरवर्ड ऑडिट, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का था बेटा। ऑडिट ये बैकवर्ड का था, ये क्या था? फॉरवर्ड का था। ये खाली ऐसे याद कर दो। यस सर। इसका बेसिकली हमें यहाँ पे ऐसा कोई काम है नहीं, हमें तो केसी पे काम करना पड़ेगा। आगे अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो हमें क्यूसी लिखना आना चाहिए, नो डाउट क्यूसी लिखना हमें आना चाहिए। इस क्यूसी को लिखने के लिए हम यहाँ पे सिखाते थे, अगर आपको याद हो तो क्यूसी पे और आगे हम कमेंट करेंगे। अभी क्यूसी पे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास जब क्यूसी लिखने का टाइम आता था, याद हो आप कैसे लिखते थे? अगर मेरे पास क्यूसी लिखते समय किस बात पे ध्यान देते थे? इस बात पे ध्यान देते थे कि एक्टिव मास ऑफ अगर प्योर सॉलिड है बेटा, एक्टिव मास ऑफ अगर प्योर लिक्विड है, तो कहता था सर इसको 1 मान लेना, इसके कंसंट्रेशन को क्या लेना? यूनिटी ले लेना। कंसंट्रेशन मस्ट बी टेकन एज यूनिटी, कांस्टेंट मान लेते थे। रेस्ट गैस का कंसंट्रेशन लेते थे, और हम किसका लेते थे? एक्वस का कंसंट्रेशन लेते थे। गैस और एक्वस का कंसंट्रेशन को इन्वॉल्व करना होता है, और सॉलिड और लिक्विड के कंसंट्रेशन को यूनिटी मानना रहता है। क्यूसी लिखने की थोड़ी सी हमें मतलब आइडिया होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो हम आपको अभी सिखाएं भी आगे चल करके। गॉट इट? मैं अगर इसमें एक स्टेप आगे चलूँ तो मान लो मैं तुम्हें एक रियल एग्जांपल दे दूँ। मान लो मेरे पास जिंक सॉलिड है, गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल ले लो। जिंक सॉलिड है जिसने रिएक्ट करके मान लो क्या बना लिया बेटा? Zn+2 बना लिया, और देयर इज अ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली मैंने ये सिखाया था, दिस इज द रिएक्शन अकर एट एनोड। ये कहाँ होता है बेटा? एनोड पे होता है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, मैंने पहले भी बताया। एनोड पे मोर रिएक्टिव मेटल होती है जो इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस करती है, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज आता है। If this is the aqueous, and on the cathode if I will say that in galvanic cell में, तो कैथोड पे बेटा क्या होता है? कैथोड पे there is the positively charge, कॉपर +2 आयन जो सोल्यूशन के रहते थे, they used to do suicide। वो क्या करते थे? इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करके इसने ऑफर में दे दिया कि इलेक्ट्रॉन ले लो। इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद कॉपर हमारा सुसाइड करके कॉपर हमारा सॉलिडिफाई हो जाता था। मैं इस दिस इज ओवरऑल रिएक्शन ऑफ दिस सेल। ये बेटा एक हाफ सेल बोला जाता है। व्हाई दिस इज हाफ सेल? बिकॉज सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ऐसे में एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड को हम हाफ सेल बोल सकते हैं, ये भी एक हाफ सेल का रोल प्ले करेगा। हाफ सेल की जब हम बात करते हैं तो आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। जैसे दोनों को ऐड कर लो, यू विल गेट ओवरऑल सेल रिएक्शन, देन यू विल गेट ओवरऑल सेल रिएक्शन। इज इट ओवरऑल सेल रिएक्शन? ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करो, सम करो बेटा, तो इसमें हमें रिएक्शन ऐड करना आना चाहिए। रिएक्शन में हमें सिखाया गया LHS को LHS में ऐड कर देना, RHS को RHS में कर देना, इलेक्ट्रॉन को नलिफाइड कर देना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी 2। ये हमें n काम आएगा, जो पीछे का फार्मूला आना देखना, यहाँ पे n लिखा होगा बेटा। सी दिस डाटा n यहाँ पे काम आएगा, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। n इज दिस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन। इज इट जिंक सॉलिड में? इसको मैंने यहाँ नोट कर लिया बेटा, जिंक सॉलिड है। कॉपर कैसा है बेटा? एक्वस मीडियम में, कॉपर एक्वस में रहेगा, इसका हम कंसंट्रेशन जरूर इन्वॉल्व करेंगे। कॉपर एक्वस में रहेगा, बॉडी इज गोइंग टू बी इन राइट हैंड साइड में क्या आएगा बेटा? दैट इज द Zn+2, दैट इज Zn2++ Cu। वेरी गुड, कॉपर इन सॉलिड बॉडी। अब आप इसका क्यूसी लिख के दिखाओ। अब जब क्यूसी लिखोगे तो मैथमेटिकली लिखते समय तो हमें ये मालूम है कि प्रोडक्ट, these two are considered as product, and the left hand side I can say this is the actually reactant, is it? I must write P by R, हमें P by R लिखना होगा, लेकिन पावर पे ध्यान देना होगा कि इसका जो बेटा कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, सारे का कोफिशिएंट I can simply write Zn+2 है ना, into copper solid। we know that copper solid है तो obviously यूनिटी हो जाएगा, इसका तो यूनिटी लेने वाली है, डिवाइडेड बाई Zn सॉलिड इनटू कॉपर+2। ये काम हमें बेसिकली करना पड़ता है सारे केस में। तब प्रॉब्लम होगी जिसको इक्विलिब्रियम नहीं तैयार होगा, जिसने इक्विलिब्रियम पढ़ा ही नहीं है, उसको यहाँ पे इशू आएगा। तो
यहाँ पे बेसिकली बेटा हमें क्या ध्यान देना, ये तो सॉलिड है, ये गया, ये भी गया, 1 1। तो फाइनली मेरा जो यहाँ QC आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी Zn+2 विल बी इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई Copper+2 मस्ट गो इन द डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ध्यान से देखना, तो ये Zn+2 आया कहाँ, कहता है वो ऑक्सीडेशन के बाद आता है। तो हम इसको कौन सी स्टेट मानते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज स्टेट। ये एनोडिक कंपार्टमेंट में, तो दिस इज नोन एज ऑक्सीडाइज स्टेट, ये ऑक्सीडाइज स्टेट है, ऑक्सीडाइज स्टेट में ये मिलेगा। व्हाट इट, एंड आई एम गोइंग टू सी दिस अनदर वन, Copper+2 से कॉपर में, तो ये रिडक्शन में इन्वॉल्व हो रही है, ये ऑक्सीडेशन के बाद बनती है, रिडक्शन का ये वाला इन्वॉल्व होगा, ये रिड्यूस स्टेट माना जाता है। सम टाइम क्या करते हैं हम ना, इसमें Zn+2 कहाँ से आया, एनोड वाले कंपार्टमेंट से आया है। तो कभी कभी ना फार्मूले में ना हम ऐसे लिख देते हैं एनोड डिवाइडेड बाई कैथोड, एनोड डिवाइडेड बाई कैथोड, मतलब एनोडिक कंपार्टमेंट में जो कंसंट्रेशन होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर में। कैथोडिक कंपार्टमेंट में कभी कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैथोड, एनोड बाई कैथोड, यू कैन राइट इट लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हो। ऑक्स बाई रेड भी रख सकते हो, ऑक्सीडाइज स्टेट divided by reduced state, you can write in this way also. So no need to be confused if the reaction is given in such a way. Oxidized state by reduced state वही चीज है, एनोड बाई कैथोड भी वही चीज है, लेकिन हमें ये QC लिखना अच्छे से आना चाहिए। पढ़े, आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ तक नोट कर लो पहले, मैं आपको आगे बोलो। सर ये कॉपर और Zn कट कैसे, कॉपर और Zn कट कैसे हुआ? कॉपर कट कैसे हुआ, वेरी गुड। पीछे मैंने देखो बेटा, अभी इसके पीछे वाली स्लाइड में यहाँ दिखाया था, देखो ये वाला पॉइंट, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड दैट मस्ट बी टेकन एज यूनिटी। वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है कि मैंने 1 भी क्यों माना। आप ये पूछ सकते हो मेरे को, सर आपने इसको 1 क्यों कंसिडर किया। तो मेरे पास मान लो बेटा एक मेटल का कोई ब्लॉक है, मैं इसकी टैप निकाल लेता हूँ, उसे तो मेटल ब्लॉक मान लो, मेटल का ब्लॉक है। ये जो मेटल यहाँ यूज हुआ, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी बेटा, जब इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। जब बेटा इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसका हम ये मानते हैं मोल पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की डेंसिटी फिक्स्ड होती है। क्या फिक्स्ड होती है बेटा, डेंसिटी फिक्स्ड होती है। दैट इज द रीजन, इनकी डेंसिटी को क्या माना जाता है, कांस्टेंट। सिंस देयर डेंसिटी इज टेकन एज कांस्टेंट, तो दैट इज वाई हमें क्या करना रहता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम कभी नहीं चेंज होगा। प्योर वाटर तुम 1 लीटर ले लो, 5000 लीटर ले लो, 10 ml ले लो, 1 ड्रॉप ले लो, डेंसिटी तो वही रहती है। तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि उसकी मास पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट माना जाता है। यही रीजन है कि उसकी मोलरिटी को हम फिक्स मानते हैं। नो डाउट प्योर वाटर में 55.56 होता है, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा। इज इट? यस सर। तो इसको याद करके रखो कि प्योर सब्सटेंस कोई भी है, तो अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, तो आप बोल देना डेंसिटी कांस्टेंट है। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, मास बाई वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। बट डेंसिटी कांस्टेंट है तो मास बाई वॉल्यूम, D इक्वल टू W/V। तो W/V में तो ये पूरा रेशियो ही कांस्टेंट है, तो मोल बाई वॉल्यूम भी तो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल तो कांस्टेंट है ना। बट अब यहाँ पे हमें एक QC की मैंने डाटा आपको समझा दी। अब हम F पे जा रहे हैं। N तो मैंने सिखा दिया, N तो इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। व्हाट इज एक्चुअली F? बेटा F की बात आती है, व्हाट इज एक्चुअली F? F जो कैपिटल है तो फैराडे कांस्टेंट। वेरी गुड, हाँ फिजिक्स में आपने पढ़ा है, दैट इज द फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट, वी नो दैट फैराडे कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि it is equal to the charge of 1 mole of electron. It is equal to the magnitude of charge of 1 mole electron. Charge of 1 mole electron के equivalent होता है 1 mole electron. Got it? We know that mole is how much? So we know mole is how much, 6.022 into 10 raised to power 23. And we know that charge of electron is how much? So that is going to be equal to the multiply by 1.6। मैग्नीट्यूड लेना है बेटा, माइनस प्लस मत लगाना, यहाँ पे -19 है ना। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई मस्ट गेट 96,487। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो नियरली 10 की पावर 4 आ जाएगा।
और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9.6 समथिंग आएगा, 16 इंटू 6 9.6 के बेस में आएगा। गॉट इट? तो दोनों को अगर मैं ये, लेकिन इसको अगर ये गिवन है तब तो सो फार सो गुड, यही यूज करना। मान लो आप जेई का क्वेश्चन लगा रहे हो, बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन लगा, अगर ये डाटा गिवन है तो यही लगाना, नहीं गिवन है तो ये हमेशा ये वाला लगाते हैं 96,500, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में आंसर सेम आता है। बोथ आर डाटा इज अलाउड फॉर कैलकुलेशन। गिवन है तो इसको लेके चलना। कभी कभी गिवन दे देता है, ऐसा कोई डिजिट दे देता है ना जो कट जाता है, तो बच्चे का कहते हैं घबरा के ना नीचे वाला लगा लेते हैं। तो आपका क्या करेगा ना, बहुत जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है ना उसमें कभी कभी धोखा देता है। तो अलर्ट, लिटिल अलर्ट इन दैट केस व्हेन द डेटा इज गिवन। वैसे भी आप आंसर के आसपास आ जाएगा, सारे आंसर एक जैसे हैं, तब हमें फिर इसमें एक्यूरेसी पे जाना होगा कि 487 से 500 में थोड़ा तो इधर आती है, but that is not that much. बोलो। सर इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट तो लिखा था मैंने, कूलाम, मतलब मोल। मोल इसका तो क्या था, नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो उसको मैंने डिजिट में ले लिया ना। गॉट इट? वो लीजिए नंबर, तो नंबर की तो कोई यूनिट आएगी नहीं। मतलब ये कहीं ना कहीं कूलाम पर मोल है, मतलब पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज की यूनिट तो कूलाम भी लिखेगा। अरे आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई किया इस नंबर से, इसके नंबर की तो कोई यूनिट लिखते नहीं, आप लिखते हो कोई यूनिट? नहीं लिखते ना बेटा, ये खाली है तो कूलाम आ गया। क्लियर हो गया बेटा? लिखते समय, यस सर। हाँ लिखते समय तो हम फैराडे, इसको आगे चल के काम आता है। मान लो मैं ऐसे लिख दूं ना, एल्युमिनियम पे मान लो मैंने लिख दिया +3, तो मैं अगर ऐसे एल्युमिनियम लिख देता न्यूट्रल, इसमें क्या होता है 13 प्रोटॉन है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन नलीफाइड होगा, इसका चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ चार्ज तुम्हें दिख रहा है, तो दिख रहा है तो इसको काउंट कर लो, इट इज इक्विवेलेंट टू चार्ज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये इक्विवेलेंट टू चार्ज ऑफ 3 प्रोटॉन, मतलब 3 प्रोटॉन के चार्ज एक्स्ट्रा है। अगर इसको 1 मोल ले लो, ये कितना हो जाएगा बेटा 3 मोल इलेक्ट्रॉन। और 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकते हैं 3 फैराडे। 3 फैराडे ये कभी कभी काम आएगा आगे चल के। ऐसे मैंने लिख दिया ऑक्सीजन -2, मैं तुमसे पूछूं इसका चार्ज कितना है, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं 1 मोल, 1 मोल होगा तो तुम बोलोगे इट इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव पॉजिटिव पे ज्यादा टेंशन मत लेना, बस खाली क्वांटिटी पे ध्यान देना, ये 2 फैराडे के इक्वल हो जाएगा। गॉट इट? किसी भी दिए गए आयन में, किसी भी दिए गए साल्ट में, कहीं पे भी बेसिकली ना हम चार्ज को फैराडे में कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल पे रेफरेंस में ले लेना। चलो पीछे वाली स्लाइड में हम वापस चलते हैं। पीछे वाली स्लाइड में मैंने बताया था कि ये वाले फार्मूले की एक्चुअली हम एनालिसिस कर रहे हैं, इन दोनों में रिलेशन निकालना है, इन दोनों में रिलेशन, लेकिन हमें यहाँ तक पहुंचे हैं अभी। आर और टी हमें पहले से मालूम है, तो हमें उस पर ज़्यादा काम करना है नहीं। आर की वैल्यू लिख देना है, क्योंकि ये सारा एनर्जी से रिलेटेड है। 8.314 उस फार्मूले में मैंने जो पीछे लिखा है उसमें आर जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा 8.314 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल। यही डाटा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये टर्म पूरा पूरा एनर्जी से रिलेटेड है, हम उसमें सेल पोटेंशियल निकालना है। करेक्ट? तो ये हमें डाटा यही लेना है। टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, टेम्परेचर मस्ट बी टेकन इन केल्विन, और टेम्परेचर शुड बी टेकन एज 298 केल्विन, इज इट, या 20 बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस को हम SATP मानते हैं। क्या मानते हैं? SATP थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है बेटा? थर्मो का चैप्टर है। थर्मो का चैप्टर हो बेसिकली, या तो ये इलेक्ट्रो का चैप्टर हो। इसमें जब स्टैंडर्ड की बात करेगा ना, इसमें जब भी स्टैंडर्ड की बात करे तो तुम किसी से पूछना मत, उसमें स्टैंडर्ड जो काम होता है लेबोरेटरी की कंडीशन होती है। हमारे लेबोरेटरी में जो SATP होता है बेसिकली उसको भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर से लेते हैं, तो दैट इज टेकन एज हाउ मच 25 डिग्री सेल्सियस। इज इट? नॉर्मल जो वर्किंग होती है ना सेल की वो 25 पे होती है, 25 का मतलब 298 केल्विन। तो अब अगर ये सारा डाटा हम रख दें, हमने देखा पीछे E इक्वल टू P नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 into R into T divided by N Faraday into log QC into log, ये तो फॉर्मूला है, पूरा बड़ा सा फॉर्मूला है। लॉग लेना, इंटू लॉग लेना, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने QC बता दिया, इक्विलिब्रियम से लेना देना, इसका वैल्यू मैंने बता दिया, आपको ये बता दिया
ये वेरिएबल है, रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगी, ये कांस्टेंट है। लेट अस सॉल्व द कांस्टेंट, इसमें सॉल्व कर देना कांस्टेंट। जैसे इसमें कांस्टेंट क्या है बेटा 2.303 इंटू 8.314, बार बार आएगा, कांस्टेंट को सॉल्व कर लो, इंटू टेम्परेचर कितना होगा, दैट इज 298 केल्विन इंटू 298 केल्विन। गॉट इट। अगर मैं बेटा इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर लो तो आई विल गेट हाउ मच, डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट कितना हुआ 96,500 कूलम। इसको सॉल्व करो, once you are going to solve it you will get 0.059, this is the final value of this constant solution। तो मेरा फार्मूला क्या होगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ई नॉट ऑफ सेल हमें निकालना, मैंने पीछे सिखाया था, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड से आएगा, वो हमेशा निकाल लेते हैं हम 0.059 बाई एन, हर रिएक्शन में अलग अलग आएगा, इंटू लॉग QC, एनोड बाई कैथोड, तो आपने पीछे लिखा था, एनोड बाई कैथोड लिख सकते हो, ई ऑफ सेल, दिस इज द ई ऑफ सेल, तो ई ऑफ सेल, तो ये ईएमएफ के बराबर, ये दोनों बराबर हो सकता है, ये दोनों मैंने बोला बराबर हो सकता है। कंडीशन अप्लाई कि लॉग के बाद वाली वैल्यू को 1 मान लो, कितना मान लो बेटा 1, तो log 1 0 हो जाएगा, और 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो लड्डू ही मिलेगा। तो फाइनली हमारा ये दोनों तब इक्वल होगा अगर हम QC को कितना ले ले बेटा 1, एनोड कंपार्टमेंट को कैथोडिक कंपार्टमेंट को अगर हम सेम मान लें, QC कितना मान लो 1, तो log 1 कितना होता है, log 1 इज गोइंग टू जस्ट 0। किसी को डाउट इसमें, तो log 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log x की पावर 0 बेस 10, और 0 इंटू दिस वैल्यू इज गोइंग टू फाइनली 0। नहीं समझ में आया है ना, तो अभ्यास समझ में आ रही बात। Yes, sir. आ गया सर। हाँ जी हाँ जी, तो इसको अगर बेटा ये दोनों तब इक्वल होता है जब हम पूरी तरीके से स्टैंडर्ड कंडीशन लगाते हैं दोनों कंटेनर में, जो हमारे एनोड और कैथोड वाले कंपार्टमेंट है, दोनों तरफ अगर हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको अगर हम 1 मोल पर लीटर ले लें, कितना ले लें, यूनिटी ले लें, ऐसा अगर ले लेते हो तो log के बाद वाली वैल्यू में हमारा 1 आ जाएगा, और log 1 हमारा होता है 0 की पूरी वैल्यू कहीं ना कहीं ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल हो सकती है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉर्मल हमारा जो सेल पोटेंशियल दोनों सेम हो सकता है। कंडीशन अप्लाई की दोनों साइड में कंसंट्रेशन कैसे हो, यूनिटी हो। तो इसका मेजरमेंट बेसिकली हम लोग किससे करते थे, SHG से, हाँ SHG से किया जाता था, याद करोगे तो वहाँ आता था। अब मैं इसका एक एप्लीकेशन तुम्हें देता हूँ, देखो ट्राई करो कौन कर पाता है। गैल्वेनिक सेल मैंने दे दिया, गैल्वेनिक सेल है मान लो Zn+2, बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगा दो, राइट हैंड साइड में लिखना copper+2 बाई कॉपर, ये ऐसे गिवन रहेगा। इसका कंसंट्रेशन बेटा तुम्हें दिया रहेगा, इसका कंसंट्रेशन सपोज कर मैंने दिया 10 की पावर -4 मोलर का मतलब मोल पर लीटर। copper+2 का कंसंट्रेशन गिवन है मान लो 10⁻⁻² मोल पर लीटर, कितना दिया मोल पर लीटर, व्हाट इट। और मैंने पीछे इसका सिखाया था, मैंने अगर मैं तुम्हें दे दूँ तो पीछे मैंने अभी बताया था कि इसका ई नॉट ऑफ सेल गैल्वेनिक सेल है, तो भव्य याद है कितना होता है ई नॉट ऑफ सेल गैल्वेनिक सेल का, जैसे द गैल्वेनिक सेल, पीछे मैंने कई बार इसको कराया, इसका मैंने बोला भी तो याद कर लेना, यही याद करो बस, सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। 1.10 वोल्ट कितना था बेटा 1.10 वोल्ट। अगर ये लेकिन याद नहीं करना, डाटा विल बी गिवन टू, ऐसे दिया रहेगा कि Zn+2 by Zn, this will to given to us and that is given how much बेटा 0.76 वोल्ट, कितना दे दिया बेटा 0.76 वोल्ट। एंड अनदर डाटा कॉपर का कितना था, पीछे मैंने कॉपर का भी बताया था, याद करो पीछे कॉपी देखो, कॉपर का दिया था मैंने प्लस 0.34। वेरी गुड। इन दोनों को देख करके तुम कोई भी आदमी बता सकता है बेटा ये नेगेटिव में है तो लो है, दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस न्यूमेरिकल, ये लो है बेटा, ये लोअर वैल्यू है तो लेट अस गो विद द एनोड, और दिस इज द हायर वैल्यू, ऑलवेज गो विद द कैथोड, ये हायर वैल्यू है तो इसको कैथोड मान लेना। तो हमेशा ई नॉट ऑफ सेल जब निकालना होता है तो कैथोड माइनस एनोड दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल हम लगाते हैं। ई नॉट ऑफ सेल मस्ट बी कैलकुलेटेड बाय दिस टू गिवन डेटा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। So let's put the data, कैथोड कितना है बेटा 0.34, माइनस फार्मूले का माइनस इसकी वैल्यू, माइनस फार्मूले का माइनस इसकी वैल्यू, दोनों पे ध्यान देना रहता है, माइनस 0.76 वोल्ट। If I am going to do the sum, I must get 1.10 वोल्ट, ये मैंने वैसे डायरेक्ट भी दिया था।
अब मेरे से बोलेगा सर ये तो आ गया, तो निकालना क्या है सर? कहते ई आप सेल निकालना है, आउटपुट कितना है सेल का, निकालो। सेल को टेंशन निकालना है पूरे सेल का एट दिस गिवन कंडीशन। ये सारी जो कंडीशन गिवन है, 298 केल्विन टेम्परेचर गिवन रहेगा, वो अंडरस्टूड रहता है, उसमें टेंशन भी मत लेना। यहाँ फार्मूले में रख देना 1.10 बेटा माइनस 0.059 बाई एन कितना आएगा? एन इसमें तुम्हें दिख रहा होगा, देखो इसका +2, इसका भी +2, एन आ गया 2, डिवाइड बाई 2 कर देना इनटू लॉग एनोड वाले कंपार्टमेंट को न्यूमरेटर में रखना, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, एनोड बाई। आप बताना एक बार, हाँ बोलो बेटा। एक बार एन बताना, कैसे पता चलेगा? एन हमें इस चार्ज पे ध्यान देना, ये चार्ज इधर कहाँ जा रहा है? Zn से Zn+2, देयर इज लॉस ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर +2 से कॉपर जाएगा तब भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस है ये, तो इसको मतलब टेंशन मत लेना, व्हाट इट, डायरेक्ट कहीं से चार्ज देख लेना, वेरिएबल बैलेंस ही है, आगे और भी सिखाएंगे, अभी हम टेंशन मत ले। मान लो इधर Okay, मान लो sir. +2 है, इधर मान लो Ag+ मैंने लिख दिया, व्हाट इट। आपको क्या करना रहेगा, इसकी बैलेंस से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना और इसकी बैलेंस से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा, N2 आ जाएगा। इसकी बैलेंसी 1 है, इसकी बैलेंसी 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, चार्ज बैलेंस होना चाहिए। रिडॉक्स में हम लोग नहीं करते थे, वही सेम है। एनोड बाई कैथोड, एनोड का कंपार्टमेंट कंसंट्रेशन ऊपर है 10 की Sir, पावर। E of cell comes out to be 1.159 volt. वेरी गुड, एकदम सही है। 10⁻⁻2 है बेटा, इसको सॉल्व करो, 10⁻⁻2 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर कितना होगा? +2 हो जाएगा, और पावर सॉल्व करोगे तो 10 की पावर कितना होगा? -2 आ जाएगा, और -2 है, लॉग में है, तो लॉग m की पावर n कितना होता है? पावर पहले आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 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 ये वैल्यू देखो पहले आएगी, -2 इंटू log 10/10, log 10/10 अंडरस्टूड होता है, log 10/10 अंडरस्टूड, ये log 10/10 1 हो जाता है, माइनस से ये वाली साइन उड़ जाएगी, माइनस से आपको क्या करना रहेगा बेटा, उसके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट यहाँ का ये जो माइनस है और यहाँ का ये माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो प्लस, तो ये 1.10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, फर्स्ट में हो गया, तो ये कट गया, 1.59. वेरी गुड, 1.159। वोल्ट। ये वेरिएबल रहता है, ये डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे कितना कंसंट्रेशन ले रहे हैं, कंसंट्रेशन आप इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, जिस रेशियो में आप कंसंट्रेशन लोगे उस रेशियो में काम करेगा। तो ये एक मैंने आपको हिंट दिया, आप इस पे मैं एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, इसको बना के कोशिश करना, यही एक पे खूब कमांड करो, एक पे अगर आपका अच्छा कमांड है ना, आप सारे क्वेश्चन बना दोगे। दो चीज मैंने ध्यान से दिखाई, ये की पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ दिखाया ना बेटा, की पॉइंट ऑफ द न्यूमेरिकल यही है कि आप देखते ही क्वेश्चन को कम से कम ये तो पकड़ पाओ कि एनोड कहाँ है कैथोड कहाँ है। अगर आपने एनोड और कैथोड को डिसाइड कर लिया तो आपका एक काम तो ऐसे हो जाएगा, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द नॉट ऑफ सेल। तो आपका ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, तो आपने यहाँ पे कम से कम बाजी मार ली, कम से कम 1 to 1.5 1.5 नंबर का काम आपने यहाँ कर लिया। फिर आप आगे बढ़ जाना, ये आप सेल निकालने के लिए तो मस्त क्वेश्चन लगा देना, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप इसको बना लेना, तो मुझे लग रहा है आप बना लोगे। लेट्स राइट दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आपको दे रहा हूँ कॉपर, कॉपर बाई कॉपर +2 में लिखूंगा यहाँ पे, बीच में साल्ट ब्रिज Ag प्लस पब्लिक AgA। यहाँ पे तरीका मैंने समझाया था कि आपको क्या करना रहेगा, बैलेंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, बैलेंस करके नहीं देगा, ये काम तुमको खुद से करना है, यही काम में अलर्ट रहना खाली। इसका तो मैं दे दूंगा मैं E0 ऑफ कॉपर +2, पीछे वाली स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है कॉपर का कितना था, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा 0.34 वोल्ट, 0.34. इसका भी मैंने दिया 0.8 होता है, E0 ऑफ Ag प्लस ऑब्लिक Ag हमारी लेस रिएक्टिव मेटल है, इसका गिवन होता है 0.80 वोल्ट, ऑडिट इन दोनों का हो गया। इतने कंसंट्रेशन दे देगा कि 10 की पावर माइनस मान लो -3 है, इधर दे देगा 10 की पावर -1,
तो हमें लगाना है एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछेगा व्हाट विल बी द ई ऑफ सेल। सेल का टेंसिल बताना है। सेम फार्मूला लगाओ। यहाँ पे अलर्ट रहना खाली, ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा बेटा। बच्चा यही गलती करता है। जैसे मैं अगर इसको रिएक्शन में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, देखो बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन and if I am going to write in this way, the Ag plus by taking 1 electron is going to make Ag, is it? Ag बना लेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले बैलेंस करोगे तो यहाँ 2, तो यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन का 1 यूनिफाइड हो गया। जब इसको एज हम इक्विलिब्रियम के फॉर्म में लिखते हैं तो हमें ये सिखाया गया है कि रिएक्टेंट्स ये हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए, उनके जो कोफिशिएंट होंगे दे मस्ट बी गो इन द पावर। यहाँ पे कोई ये सॉलिड है, ये तो यूनिटी हो जाएगा, लेकिन Ag के साथ जो कोफिशिएंट गिवन है दैट मस्ट बी गो इन द पावर। ये गलती ना कॉमन है बच्चों से। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू दिस मिस्टेक एंड दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू लॉस इन बिग मार्क्स। ये भी है, दिस इज द डेंजर पॉइंट। ये आपका डेंजर पॉइंट है। डेंजर पॉइंट का यहाँ का ये तो काम हम ही नहीं कर पाते, क्योंकि जब हमें यहाँ QC लिखना होगा तो हमें क्या करना चाहिए था, इसको एज इट इज ले लेंगे। प्रोडक्ट है तो इसको ऊपर जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से मैंने ले लिया, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से। लेकिन मेरे को जब इसका कंसंट्रेशन इन्वॉल्व करना होगा तो इसका 2 कहाँ जाएगा बेटा, पावर में जाएगा, क्योंकि आई एम राइटिंग एक्टिव मास। आई एम राइटिंग एक्टिव मास, और एक्टिव मास हमें सिखाया जाता था पावर उसके कोफिशिएंट मोलरिटी की हमेशा जाती है। Rate of reaction directly proportional to the concentration of reactant. There is some power that must be equal to the this coefficient. इसके इक्वल हमेशा होना चाहिए। यहाँ पे 2 होना मैंडेटरी। अगर ये भूल गए तो आपसे गलत हो जाएगा। अगर आप इतना कर लिया तो आपका न्यूमेरिकल अब बन जाएगा। आई होप नाउ इट कैन डू दिस, इज इट? बन जाएगा ना बेटा? पिनाट ऑफ सेल निकाल लेना। कितना 0 पॉइंट कितना आता है? 0.46 माइनस 0.059 बाई n कितना आएगा बेटा? 2 आ जाएगा, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है। जस्ट सी दिस टू डेटा इनटू लॉग। एनोड पे कौन है? कॉपर +2 का कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में रख देना, और सिल्वर का जो कंसंट्रेशन उसको मल्टी स्क्वायर कर देना। सिल्वर की मोलरिटी को स्क्वायर में कर देना। दिस इज Sir, is the answer 0.488 volt? हाँ जी, व्हाई नॉट? आपने सही लगाया होगा। लाभ तो तुम लोग आता ही एक्सपर्ट उसमें, आपने किया हुआ है। 0.48 वोल्ट। हाँ, मुझे लग रहा है आप उसमें एक्सपर्ट हो। मैं अगर एक स्टेप चलूँ तो मेरा भी आंसर आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व कर दूँ। 0.0 कितना है? 0.03 अप्रॉक्सीमेट 0.03 बाई 1 इंटू लॉग 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस का होल स्क्वायर एंड 10 की पावर -3 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। तो पावर अंदर ले लेना। 0.48. हाँ, तो ऊपर ये पूरा सोल्यूशन हो जाएगा मेरा, और करके लिख दो 10 की पावर -1 आ जाएगा ना। माइनस माइनस कैंसिल, ये तो ऐड हो गया। 0.4948। 0.488. 0.4 ये मोर एक्यूरेट है। जब तुम लोग निकालो दैट इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है। दिस इज मोर एक्यूरेट आंसर। मेरे हिसाब से आ रहा था मेरा 0.049, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। अभी जब आगे बढ़ेंगे ना, ये सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। ये कोई और गलती हो गई क्या? हाँ, तू अच्छा थी तो पहले मैंने यूज ही कर लिया था यहाँ पे। सॉरी, ठीक है, डन डन, करेक्ट आंसर। चलो, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, हैव अ नाइस डे। थोड़ा थोड़ा समझ में Thank you, आया। sir. Am I able to just sir. अगर आपको Yes, sir. थैंक्स टू, अभी आप अगर इससे लगाओगे तो आप कम से कम अपनी NCERT के ना तो जितने भी न्यूमेरिकल है मस्ट इक्वेशन में बेस मैक्सिमम सारे क्वेश्चन तेरे से अगर आप बना रहे हो, बुक बनाना चाहोगे तो इमीडिएटली विल बी एबल टू मेक इट। मैं कराऊंगा, मैं अपनी तरफ से खुद से करा दूंगा। कम्युनिटी वरीड अबाउट दैट। रेस्ट उसके बाद भी फिर हम ये जब लेवल कंप्लीट होगा देन वी विल गो फॉर द प्रैक्टिस। चलो, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल अगेन। Thank you, sir. Have a nice Thank day. you, sir.